ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 7 ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੋ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੇਲਿਸਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ 8th ਇੰਗਲਿਸ਼ MCB ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ 8th ਸਾਇੰਸ, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8th ਮੈਥ ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8th ਮੈਥ ਨੋਟਸ। ਸੋ ਮੈਥ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵੌਇਸ। ਅਗਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿਵ। ਦੇਖੋ ਹਰੀਸ਼ ਪਲੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ। ਹਰੀਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਪਲੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਪਲੇਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਲੇਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੋ ਇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਪਲੇਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ ਪਲੇਡ ਤੇ ਬਾਏ ਹਰੀਸ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਡ ਬਾਏ ਹਰੀਸ਼। ਹਰੀਸ਼ ਪਲੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬੱਚੋ, ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। She likes singing। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਕਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ is liked by she ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ her by her ਕਿਉਂਕਿ by she ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ singing is liked by her, she will change to her। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ he changes to him, they changes to them, ਠੀਕ ਹੈ। we fly kites। ਹੁਣ kites ਕੀ ਹੈਗਾ is plural। singing was singular, cricket was singular, kites is plural। so kites are, kites is ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ kites are। fly ਦਾ third form ਹੈ flown, are flown। by ਤੇ we ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ us। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ she ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ her, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ we ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ us। so kites are flown by us। so simple, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੀਰਾ helps ਦੀ ਪੂਅਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਰਾ। ਸੋ ਦੀ ਪੂਅਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੀ ਪੂਅਰ। ਹੁਣ ਦੀ ਪੂਅਰ ਪਲੂਰਲ ਹੈਗਾ, ਆ ਪੂਅਰ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਪੂਅਰ ਮੀਨਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁੱਟ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਆਲ ਗਰੀਬ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਅਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੀ ਪੂਅਰ ਆਰ ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੈਲਪਡ ਬਾਏ ਮੀਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੀ ਦਾ ਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਦਾ ਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਮੀਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਰੀਸ਼ ਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ ਓਪਨ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਓਪਨ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦੀ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਆਈ ਓਪਨ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ओपन प्रेजेंट टेंस है, अकाउंट एक वचन है सिंगुलर है। इज ओपनड आई दा बन जाएगा मी बाय मी ते अगे आ जाएगा इन दी बैंक। सो एन अकाउंट इज ओपनड बाय मी इन दी बैंक। सो सिंपल। अगे चलिए बच्चों, सारे दी प्रैक्टिस जिसले तुसी करोगे ते तुहाडे लई समझना करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। हामिद डज हिज होमवर्क। डज साफ पता लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सो हिज होमवर्क इज डन। डज ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ इज डन बाय हमिद। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਮਿਦ ਡਜ਼ ਹਿਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ, ਹਮਿਦ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾय ਹਮਿਦ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾय ਹਮਿਦ। ਹਿਜ਼ ਉਹ ਹਮਿਦ ਆਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾय ਹਾਮਿਦ, ਅਰਥਾਤ ਹੋਮਵਰਕ ਹਾਮਿਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਬॉयਜ਼ ਵਾਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਵਾਚ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ ਵਾਚਡ ਬਾय ਦੀ ਬॉयਜ਼, ਬਾय ਦੀ ਬॉयਜ਼ हो गया। ਅੱਗੇ चलिए, दी कॉबलर मोची, मेंड्स, मेंड्स मैंने रिपेयर्स की माई शूज, सो माई शूज की हो गया ऑब्जेक्ट, माई शूज क्योंकि शूज प्लूरल है आर, मेंडेड, मेंड्स का बन गया मेंडेड बाय दी कॉबलर, बाय दी कॉबलर, मेरी जुतियां मोची द्वारा गंढियां जांदियां हन, मोची द्वारा मुरम्मत की जाती है। शी हेट्स, हेट होंदा नफरत करनी, हेट्स नफरत करती है, लायर्स झूठियां नूं, जिहड़े झूठ बोलते हैं। सो बड़ा सिंपल सेंटेंस है, लायर्स ऑब्जेक्ट है, लायर्स बहुवचन है, प्लूरल है आर, हेट्स का बन जाएगा हेटेड, बाय शी का बन जाएगा हर, बाय हर। ओके, आगे चलिए, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, वेरी सिंपल, स्वीट्स आर, क्योंकि स्वीट्स प्लूरल है आर, लाइक का बन जाएगा लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, मिठाइयां बच्चियां द्वारा पसंद कीतियां जांदियां हन। अगे चलिए, एक्सरसाइज 2, हुण इहदे विच बच्चों थोड़ा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस सैकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि थर्ड फॉर्म च बनेगी। सो रामा लॉस्ट हिज बुक, राम ने अपनी किताब गवा लई, नॉट रामा लूजिज नहीं है, प्रेजेंट टेंस नहीं, लॉस्ट गवा लई। सो ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं पैंदा, बस ਇਹ वे कि अगर प्रेजेंट टेंस ਹੁੰਦਾ तो इज आना सीगा, ते हुण लॉस्ट करके वाज आ जाएगा, वाज। हिज बुक वाज लॉस्ट बाय रामा, हुण रामा दी हिज दी जगह दी भी लिख सकते सी, जिहदा होमवर्क वाली गल सीगी। हुण हिज बुक वो राम दे दोस्त दी भी हो सकती है, राम दे भरा दी भी हो सकती है, राम दे डैडी दी भी हो सकती है। सो हिज दी जगह असीं दी बुक वाज लॉस्ट बाय रामा भी लिख सकते हैं, नहीं तो हिज बुक वाज लॉस्ट बाय रामा। हुण हिज कैन बी रिलेटेड टू राम और हिज कैन बी रिलेटेड टू सम सैकेंड पर्सन आल्सो, कोई दूजा बंदा भी हो सकता है, ठीक है ना। इस करके मैं दस रहा क्योंकि पैसिव वॉइस इज नॉट एडवाइजेबल टू बी यूज्ड एवरीवेयर, किते किते यूज होंदी है, हर जगह नहीं यूज होंदी, सिर्फ असीं प्रैक्टिस नहीं करते पे हाँ। सो हिज बुक वाज लॉस्ट बाय रामा, क्योंकि लॉस्ट पास्ट टेंस है, इस करके वाज आया। हिज बुक लॉस्ट वाज लॉस्ट बाय रामा, वही सेम है, जिहड़ा सीगा प्रेजेंट टेंस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इज एम आर ਹੁੰਦਾ यूज, ਤੇ पास्ट टेंस ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ वाज ਤੇ वर। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ वाज वर ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਵਚਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਾਸਤੇ वाज ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਵਾਸਤੇ वर ਹੋਏਗਾ। दे वेलकम्ड मी, मी ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ आई, आई सिंगुलर है, आई वाज वेलकम्ड बाय, दे ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ them, आई वाज वेलकम्ड बाय them। मीना wrote, अगेन सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, a letter was, wrote दा बन जाएगा written by मीना। सो सिंपल बच्चों, स्टेप बाय स्टेप, पहले प्रेजेंट टेंस के 10 सेंटेंस कीते ने, हुण इहदे 10 करांगे, ते फिर अगे फ्यूचर टेंस आएगा, ਉਹਦੇ 10 सेंटेंस करांगे। एंड these 10 sentences are good enough to give you good practice, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस करो। जे किसी सेंटेंस ਵਿੱਚ मुश्किल आंदी है, यू जस्ट राइट इट टू मी इन द कमेंट्स, कमेंट ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ मैं ਉਹਦਾ पैसिव या एक्टिव ਦਾ पैसिव बना के ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब दे ਦਾਂਗਾ, ठीक है। सो मोहन डिड नॉट, ਹੁਣ ਹੈ डिड नॉट क्यों है, क्योंकि नैगेटिव सेंटेंस है, इस करके डिड यूज करना ਪਿਆ। सो डिड ਸਾਨੂੰ शो करता है कि इट्स पास्ट टेंस। मोहन डिड नॉट सिंग, ਹੁਣ डिड नॉट सिंग की है, पूरी वर्ब है, डिड नॉट सिंग। आ सॉन्ग की है, ऑब्जेक्ट, सो आ सॉन्ग ਨੂੰ ਚੱਕੋ, आ सॉन्ग, डिड करके वाज आ जाएगा। नॉट संग, नॉट संग, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म संग है, बाय मोहन, बाय मोहन आ गया, ओके। राधा डिड नॉट ड्रिंक पूरी वर्ब है, कॉफी ऑब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट है, कॉफी इधर आ जाएगी, कॉफी। वाज नॉट ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, वाज नॉट ड्रंक बाय राधा। सो सिंपल, देखो कितना मिलता जुलता है। मोहन डिड नॉट सिंग अ song was not sung by Mohan. Radha did not drink coffee was not drunk by Radha। कितना आसान है। आगे चलिए, हरीश डिड नॉट पेंट अ पिक्चर, डिड नॉट पेंट पूरी वर्ब है, डिड नॉट ते होगी ऑक्सिलरी वर्ब, पेंट मेन वर्ब होगी, है ना। सो अ पिक्चर,
इथों चकांगे आ पिक्चर डिड करके वाज आ जाएगा बिकॉज पिक्चर इज सिंगुलर वाज नॉट पेंटेड बाय हरीश कितना सौखा है ओके हुण देखिए डिड दी बॉयज फ्लाई काइट्स की मुंडिया ने पतंगा उड़ाइया हुण देखो की है हुण क्योंकि डिड है ते वाज या वर आएगा काइट्स प्लूरल है सो वर आ गया वर क्योंकि क्वेश्चन है ना बच्चों पहले वर आएगा बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा क्योंकि डिड पहले है तो इतने वर्ब है सॉरी इतने क्वेश्चन मार्क है सो इतने की बन जाएगा डिड दे करके वर बनेगा बिकॉज फ्लाई काइट्स इज प्लूरल सो इतने वर आएगा वर काइट्स फ्लाई दा बन जाएगा फ्लोन बाय दी बॉयज की है सब्जेक्ट सो बाय दी बॉयज वर काइट्स फ्लोन बाय दी बॉयज की पतंगा मुंडिया द्वारा उड़ाइया गईया ਇਹਦਾ मतलब है कि मुंडिया ने पतंगा उड़ाइया ਇਹਦਾ मतलब है कि मुंडिया द्वारा पतंगा उड़ाइया गईया डिड यू क्लोज दी डोर हुण देखो डोर है सिंगुलर है इस करके वाज आएगा वाज दी डोर क्लोज्ड बाय यू सो सिंपल कि दरवाजा तुहाडे द्वारा बंद किया गया ठीक है ਇਹਦਾ मतलब है डिड कविता हेल्प यू हुण यू दे नाल वर आंदा पास्ट टेंस विच है ना यू दे नाल वर आंदा वर यू हेल्प्ड बाय कविता वर यू हेल्प्ड बाय कविता सो सिंपल दी प्राइम मिनिस्टर ऑनर्ड कपिल देव ਇਹ देखो ਇਹ पूरा सब्जेक्ट हैगा ਇਹ ऑब्जेक्ट हैगा ਇਹ ऑनर्ड की हैगा ਇਹ वर्ब हैगी है सो कपिल देव बिकॉज सिंगुलर है वाज क्योंकि ऑनर्ड सेकंड फॉर्म हैगी पास्ट टेंस है वाज ऑनर्ड थर्ड फॉर्म है ऑनर्ड क्योंकि ऑनर्ड बाय दी प्राइम मिनिस्टर आगे चलिए हुण इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज नॉट दी आखिरी एक्सरसाइज ऑफ दी चैप्टर अगे होर मेरी एक्सरसाइज है अगली वीडियो करांगे एक वीडियो में असी दो तीन एक्सरसाइज करांगे नहीं तो वीडियो कितने बहुत वड्डा ना हो जाए हुण जिथे बच्चों विल आ जाए विल या शैल उत्थे लग जाता बी विल बी ते थर्ड फॉर्म शैल बी ते थर्ड फॉर्म ठीक है सो मनोहर विल सॉल्व देखो विल सॉल्व वर्ब होगी पूरी विल ऑक्सिलरी है सॉल्व मेन वर्ब है दी सम्स सो दी सम्स चकांगे इथों दी सम्स ऑब्जेक्ट दी सम्स ते विल दा बन जाएगा विल बी ते सॉल्व दा बन जाएगा सॉल्व विल बी सॉल्व्ड बाय मनोहर कितना सिंपल है बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग दे नाल पहले असीं कीता प्रेजेंट टेंस फिर कीता पास्ट टेंस हुण असीं करदे पे फ्यूचर टेंस ठीक है यू विल मिस योर बस देखो विल मिस वर्ब हैगी है इनू दिमाग च रखो यू सब्जेक्ट हैगा योर बस की हैगा ऑब्जेक्ट हैगा सो योर बस विल बी मिस्ड बाय यू सो सिंपल आगे चलिए दी टीचर विल पनिश दी बॉयज दी टीचर सब्जेक्ट विल पनिश वर्ब दी बॉयज ऑब्जेक्ट सो दी बॉयज चक्या इत्थे आ गया दी बॉयज विल पनिश दा बन गया विल बी पनिश्ड ते टीचर दी टीचर तो पहले बाय लग गया बाय दी टीचर दी बॉयज विल बी पनिश्ड बाय दी टीचर अर्थात मुंडिया नू टीचर द्वारा सजा दिती जाएगी दी डॉक्टर विल एग्जामिन दी पेशेंट डॉक्टर मरीज दा मुआयना करेगा ठीक है हुण विल एग्जामिन वर्ब है दी पेशेंट ऑब्जेक्ट है दी डॉक्टर सब्जेक्ट है सो दी पेशेंट ऑब्जेक्ट नू चक्या दी पेशेंट विल एग्जामिन दा बन गया विल बी एग्जामिन्ड ते दी डॉक्टर दे पहले बाय लग गया बाय दी डॉक्टर अर्थात मरीज डॉक्टर द्वारा एग्जामिन किया जाएगा मरीज डॉक्टर द्वारा देखा जाएगा दी चिल्ड्रन विल एंजॉय दिस गेम दी चिल्ड्रन सब्जेक्ट विल एंजॉय वर्ब विल ऑक्सिलरी वर्ब है एंजॉय मेन वर्ब है दिस गेम ऑब्जेक्ट है सो दिस गेम चक्या दिस गेम विल एंजॉय दा बन गया विल बी एंजॉयड ते दी चिल्ड्रन तो पहले लग गया बाय दी चिल्ड्रन आओ जी आखिरी स्लाइड इस वीडियो दी यू विल ज्वाइन दी पार्टी यू सब्जेक्ट विल ज्वाइन वर्ब दी पार्टी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सो दी पार्टी चक्या दी पार्टी विल ज्वाइन दा बन गया विल बी ज्वाइंड ते यू तो पहले
by you। कितना सौखा है बच्चों, देखो सिस्टमेटिक ढंग नाल करना इदां। he सब्जेक्ट है, will not cook, will not क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो 3 वर्ड आ गए, will not cook। the food, the food की आ गया ऑब्जेक्ट, सो the food ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, the food will not cook बन गया will not be cooked, will not be cooked ਤੇ he ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ him ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ by him। ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। she will not wash the clothes, the clothes ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ऑब्जेक्ट, will not wash ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ verb ਤੇ she ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ subject। so the clothes ਚੱਕਿਆ the clothes will not wash ਹੋ ਗਿਆ will not be washed ਤੇ she ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ her ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ by her। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। will they elect the president, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ will ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ will ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, will ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, they elect the president, the president ਕੀ ਹੈਗਾ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ਤੇ elect ਕੀ ਹੈਗਾ verb ਤੇ will ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ will, ਸੋ will ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ऑब्जेक्ट the president, फिर आएगा be elected, elect ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ be elected। will ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ will ਹੀ रहेगा ਜਦੋਂ क्वेश्चन है ਤੇ elect ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ verb ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ be ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, थर्ड फॉर्म ਲੱਗ जाएगी ਤੇ by they करके बन जाएगा them। so will the president be elected by them। एक और क्वेश्चन देखिए, will she speak the truth, will speak ਕੀ ਹੈਗਾ will speak verb ਹੈਗੀ ਹੈ, she ਹੈਗਾ subject ਤੇ the truth ਹੈਗਾ ऑब्जेक्ट। सो क्योंकि क्वेश्चन है पहले will लिख देना फिर लिखना है ऑब्जेक्ट will the truth, फिर जो वर्ब है वो पहले be लगा के थर्ड फॉर्म कर देनी है। सो will the truth be spoken ते फिर she सब्जेक्ट है जेड़ा हर बन जाएगा तो पहले by लग जाएगा by her। will the truth be spoken by her कि ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ सच बोलिया जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब तो हैगा कि वो सच बोलेगी ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब है पैसिव वॉइस ਦਾ कि ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ सच बोलिया जाएगा, ठीक है। सो प्यारे विद्यार्थियों ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 30 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मतलब कि कहने का मतलब जिदा एक्टिव टू पैसिव किया है इसी तरह पैसिव टू एक्टिव भी करो, उल्टा कर दो, मतलब कि आंसर नू क्वेश्चन बना लो तो फिर क्वेश्चन तो तुहानू दिता ही होया वो तुहाडा आंसर हो जाएगा तो उसकी मैचिंग करो। जे तुसी एक्टिव टू पैसिव ते पैसिव टू एक्टिव दोनों पासे प्रैक्टिस करोगे फिर तुहाडी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा वधिया हो जाएगी। ये बच्चे होर सारे बड़े वीडियो बनणगे क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बड़ा वड्डा विषय है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जरूर सवाल आते हैं, एक दो 3 आते हैं। मैनूं याद है जो मैं ग्रैमर ਦੇ सवाल करता सी अपने स्कूल विच ते मेरे ग्रैमर विच 100 चों मतलब कि 10 नंबर दा ग्रैमर हुंदी सीगी ते 10 चों 10 नंबर आंदे हुंदे सी। ਉਹ 'ਚ डायरैक्ट इनडायरैक्ट स्पीच हुंदी सी, एक्टिव पैसिव हुंदी सी ते होर अपना नो सूनर दैन, हार्डली, अपना जिद्दां वैन, स्केयर्सली, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ अपने हुंदे सी रिलेटिव, नीदर, नॉर, ईदर और, ये सारे प्रैक्टिस जे करोगे बच्चों तो इट्स लाइक अ मैथ, जिदा मैथमैटिक्स होंदा ना इस पूरे बटा पूरे नंबर आने की संभावना होंदी है। सो इस करके इन्हों तुसी बड़ी रीझ दे नाल बड़ी चाह दे नाल ए करो तो तुहानूं बड़ा चंगा लगेगा तो तुहाडी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, लिखण विच भी, बोलण विच भी ते पढ़ के समझण विच भी, ठीक है। सो तुसी इसी तरह नेम दे नाल मेहनत दे नाल अपनी पढ़ाई करी चलो ते अगली वीडियो तक लई गुड बाय। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।